عمران خان ہوں. سب سے پہلی خبر آپ کو یہ دے دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پمز اسپتال لایا گیا, 5ویں مرتبہ ان کی آنکھ میں انجیکشن لگایا گیا. ان کا جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. اس سے پہلے ایک خبر دی گئی کہ عمران خان صاحب کو جیل سے کہیں باہر نکالا گیا اور پھر وہ واپس چلے گئے. اور میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ پاکستان کا جو نیشنل میڈیا ہے وہ کبھی بھی اڈیالہ کی کسی خبر کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھے بغیر رپورٹ نہیں کر سکتا. سوشل میڈیا کے لوگوں کی بات الگ ہے. کوئی اگر ذاتی طور پہ کوئی خبر حاصل کر لے اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ خبر دے دے اور اپنے رسک کے اوپر دے دے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اڈیالہ جیل سے آنے والی انفارمیشن کو پبلک کرنا آسان نہیں ہے. پاکستان کا جو نیشنل میڈیا ہے وہ تو یہ نہیں کر سکتا, ٹی وی چینلز نہیں کر سکتے, اخبارات نہیں کر سکتے. بہرحال دیکھیں, رات کو وہ لے کر آئے تو کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی. 2 بجے کے قریب لے کر آئے اور بعد میں جو پمز اسپتال کی انتظامیہ ہے انہوں نے خبر دی اور بیرسٹر گوہر نے خبر دی اور کسی کو کانوں کان پتہ بھی نہیں چلا. تو پمز اسپتال کی جو انتظامیہ وہ یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب عمر 74 سال, انہیں 15 جون 2026 کو آنکھوں کے باقاعدہ علاج یعنی 5ویں انجیکشن کے لیے پمز اسپتال لایا گیا. علاج سے پہلے آنکھوں کے ماہر ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کیا اور ان کی آنکھوں کا ایک خاص ٹیسٹ بھی کیا گیا جس کی رپورٹ سے معلوم ہوا کہ ان کی حالت میں کچھ بہتری آ رہی ہے. مریض کی اجازت حاصل کرنے کے بعد تمام ضروری طبی نگرانی میں اور آپریشن تھیٹر کے تمام طے شدہ حفاظتی اصولوں کے مطابق سرجنز نے مائکروسکوپ کی مدد سے انہیں انٹراویٹرل انجیکشن کی 5ویں خوراک لگائی. یہ پورا عمل ڈے کیئر سرجری کے طور پر کیا گیا. اسپتال میں قیام کے دوران علاج سے پہلے, علاج کے وقت اور اس کے بعد ان کی حالت بالکل ٹھیک اور مستحکم تھی. بعد میں انہیں آگے کی دیکھ بھال کی ہدایات اور ضروری مشوروں اور متعلقہ دستاویزات کے ساتھ اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا. یہ جناب پمز اسپتال کی انتظامیہ نے انگریزی میں ایک ڈاکومنٹ جاری کر دیا اور عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر لایا گیا. ایک خبر اور پھیلائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی غالباً سہیل آفریدی سے ملاقات ہوئی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس بات کو بھی چھپایا جا رہا ہے, لیکن میرے پاس یہ خبر نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ خفیہ ملاقات ہوئی ہے تو سہیل آفریدی کو اسے خفیہ رکھنا ہی پڑے گا, کیونکہ خفیہ ملاقات میں تو پھر عمران خان صاحب سے انہوں نے ہدایات لی ہوں گی, پھر سوشل میڈیا پہ رولا بھی پڑ جائے گا. اب بیک ڈور چینل کیا چل رہا ہے, کس سے کیا رابطے ہو رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے, کیونکہ جب بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پچھلا دروازہ کھولتی ہے کسی ڈیل کے لیے, مذاکرات کے لیے یا اپنی فیس سیونگ کے لیے, تو وہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دیتے. گراؤنڈ کے اوپر کوئی خبر نہیں ہوتی اور بیک ڈور چینل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. بہرحال ابھی آ جاتے ہیں باقی خبروں کی طرف. عمران خان صاحب کا علاج جاری ہے. عالمی منڈی میں ناظرین پیٹرول کی قیمتیں ایک دم گر گئی ہیں. جیسے ہی ایران اور امریکہ کے بیچ میں معاہدے کی خبریں آئیں تو عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں کریش کر گئیں. جو قیمتیں عمران خان صاحب کے دور میں تھی اس سے تو بہت ہی کم سطح پہ پہنچ گئی ہیں, یعنی $80 فی بیرل کے آس پاس پیٹرول کی قیمتیں اب ہیں. عمران خان صاحب کے دور میں یہ $115-20 تک بھی گئی تھی, تو بہت کم قیمت ہو گئی ہے. تو اب جس طرح قیمتیں بڑھائی تھیں پاکستان کی سرکار نے, جیسے پاکستانیوں کو چونا لگایا تھا جنگ کے بہانے, تو اب فوری طور پہ قیمتیں کم بھی ہونی چاہیے. عمران خان صاحب مہنگا پیٹرول خرید کے $150 کا دے رہے تھے, آج سستا پیٹرول مل رہا ہے عالمی منڈی میں $80 فی بیرل. تو کیا یہ حکمران $150 کا دے سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ عمران خان کے دور سے زیادہ سستا پیٹرول کرنے کے لیے آئے تھے. تو کیا اب یہ سستا کر سکتے ہیں؟ انہیں کرنا چاہیے. اور یہ لیوی کا جو ایک تماشا انہوں نے لگایا, قوم کے اوپر ایک بوجھ ڈال دیا ہے, وہ بوجھ ختم کرنا چاہیے. معیشت کو معیشت کے طریقے سے چلانا چاہیے, لوگوں کی جیبیں نہیں کاٹنی چاہیے. ناظرین, یہ جو معاہدہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے بیچ میں ہو رہا ہے, اس معاہدے میں ایران نے حاصل کیا کیا میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا, لیکن اب بہت ساری چیزیں اور کلیئر ہو گئی ہیں. جو اہم ترین مسودہ تیار ہوا ہے اس کے جو اہم ترین نکات ہیں ان میں چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ 30 دن کے اندر امریکہ اپنی ناکہ بندی مکمل طور پہ ختم کر دے گا. دیکھیں, فوجوں کو لانے میں جتنا ٹائم لگتا ہے واپس ہٹانے میں بھی ٹائم لگتا ہے, تو آہستہ آہستہ امریکی فوج یہاں سے موو کرتی جائے گی, ناکہ بندی ختم ہو جائے گی. لبنان کے اندر مستقل جنگ بندی رہے گی, اور یہ ایران نے بڑے دباؤ کے بعد یہ شرط ڈلوائی ہے. پھر ایرانی تیل اور پیٹرو کیمیکل پر پابندیاں معطل ہو جائیں گی. ایران اپنا تیل جو ہے وہ پوری دنیا کو فروخت کر سکتا ہے, اس کے لیے پابندیاں اب نہیں ہوں گی. امریکہ اور اتحادی تعمیر نو کے لیے $300 ارب دیں گے. یہ ایران کے تعمیر نو کا ایک پروگرام بھی ہے, اس میں ایران کو بہت سارا کچھ ماننا بھی پڑے گا, لیکن یہ بہت لمبا کام ہے.
लेकिन चले ईरान के लिए रास्ते खुल रहे हैं। दूसरा यह है कि ईरान के 24 अरब डॉलर मुंजमद असास से बहाल हो जाएंगे फौरी तौर पे। इसमें से 12 अरब डॉलर के बारे में यह कहा जा रहा है कि ये तो मुआहदे के वक्त ही हो जाएंगे और अगले 2 महीनों के अंदर ईरान को बहुत सारा पैसा मिलेगा। यह पैसा इतना ज्यादा होता है नाजरीन के 1-1 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान कितनी कोशिश करता है वो आप जानते हैं। सऊदी अरब से हमने यूएई को 2.5 अरब डॉलर वापस देना था, तो सऊदी अरब से हमने वो पैसा लिया और यूएई को वापस किया। तो उसके बदले में हमने अपने जेट, तैयारे, अपनी फौज, बहुत सारा कुछ सऊदी अरब में पहुंचा दिया। जो हमने चाइना से कर्जा लिया, हालांकि ये सारे कर्जे के ऊपर हमें सूद भी देना पड़ेगा, इन सारे कर्जों के ऊपर हमें बहुत ज्यादा, यानी ये मुआहिदा तो सामने आज तक आए ही नहीं, और जो सामने आए वो इंतहाई परेशान कुन है। पाकिस्तान को बहुत पैसा वापस करना पड़ेगा। बहरहाल ईरान के तो वारे न्यारे हो जाएंगे और जो मिसाइल प्रोग्राम है वो इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। फिर जो जौहरी ईरान की सलाहियत है वो ऐसा नहीं है कि वो एटम बम बना पाएगा, लेकिन वो एटमी तवानाई हासिल कर सकता है और उसके लिए उसको इजाजत होगी। इन सारी चीजों को प्लस माइनस करें तो ईरान इस लड़ाई को जीता है और उसने बहुत सारा कुछ अपनी कौम के लिए हासिल किया। इसके बावजूद ईरानी कौम मुतमईन नहीं है और वो एहतजाज भी करते हैं। वो कहते हैं जी बिल्कुल कोई नरम चीज अमेरिका के साथ ना की जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर जो है वो तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के। सिर्फ बिलावल एक ऐसा सियासी लीडर है, देखें जहां बनती है वहां तारीफ करनी चाहिए, कि बिलावल ने इज्जत के ऑर्डर का ख्याल रखा। बिलावल ने सबसे पहले सदर पाकिस्तान का, फिर वजीर आजम का नाम लिया और उसके बाद बिलावल ने नाम लिया आसिम मुनीर का तीसरे नंबर पे। हालांकि तीसरे नंबर पे इसहाक डार को आना चाहिए था, उसके बाद वजीर दिफा को आना चाहिए था, फिर आसिम मुनीर को आना चाहिए था, लेकिन ठीक है बिलावल ने कुछ तो लिहाज किया, कुछ तो पास रखा। बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे मिनिस्टर्स हैं, चाहे कोई भी हैं, वजीर दाखिला है या वजीर दिफा है, उन्होंने आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। पहले शहबाज शरीफ को बहुत नीचे रखा और बाज ने तो रखा ही नहीं। तो आसिम मुनीर साहब के जूते पॉलिश कर रहे हैं सारे के सारे। फैसल बाटा ने तो आसिम मुनीर को लीडर करार दे दिया और बाकियों को गीदड़ करार दे दिया। देखिए लीडर तो इलेक्शन लड़ता है या कोई तहरीक चलाता है। आसिम मुनीर साहब ने कभी कोई किताब नहीं लिखी, कभी कोई तहरीक नहीं चलाई। ये जो ओहदा जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं, अगर आज आसिम मुनीर साहब के पास ये ओहदा ना हो तो फैसल वाडा साहब अपने दिल पे हाथ रख के आप बताएं कि आप कभी दोबारा नाम भी लेंगे इस आदमी का? आप आसिम मुनीर साहब का दोबारा नाम भी नहीं लेंगे। यह हकीकत है, सुनने में बहुत बुरी लगती है लेकिन यही हकीकत है। जनरल बाजवा के आप गुण गाते थे, आप मुझे बताएं कितनी दफा आप उनके घर में उनका पता करने के लिए गए जब से वो लैट्रीन में गिरे। जनरल फैज हमीद के आप गुण गाते थे और फिर फैज हमीद के आप बहुत सख्त खिलाफ भी हो गए। नदीम अंजुम को रिटायरमेंट के बाद आप कितनी दफा मिले। तो जनरल आसिम मुनीर जब तक इस कुर्सी पे है तब तक उनका वजूद है। लीडर जो है वो लीडर ही रहता है, वो तारीख में अपना नाम भी बनाता है। देखें लीडर इलेक्शन भी लड़ता है, लोगों को इकट्ठा भी करता है, वो अपना एक नजरिया भी देता है। लीडर ना बनाए आप एक सरकारी मुलाजिम को, वो तनख्वाह लेते हैं पाकिस्तानी कौम से और उनकी अपनी एक ड्यूटी है, वो सर्टेन टाइम पीरियड तक उन्होंने करनी है, फिर चले जाना है। तो ये जूते पॉलिश करने के चक्कर में ना आप लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। अब तक आप नॉर्मल चलने दें पाकिस्तान को, जैसे सारी दुनिया चलती है वैसे ही ठीक है, वैसे ही पाकिस्तान को भी चलना चाहिए। देखिए पूरी दुनिया के अंदर हम सालसी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, इधर अमन करवा देंगे, उधर अमन करवा देंगे। हम जाते हैं सबके साथ मीठे मीठे मुंह बनाकर मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने हालत क्या कर दी है। ये मैं आपको आज की खबर दे रहा हूं कि सेंट्रल करम के अंदर ड्रोन हमला हुआ। उस ड्रोन हमले में एक मां, उसका बेटा और 2 बच्चियां, ये 4 लोग शहीद हो गए। मुझे बताया ना इमरान खान का नजरिया किधर है? वहां पे तो इमरान खान की हुकूमत है। सुहेल अफरीदी की जज्बाती तकारीर या मुकदमा कर दूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो किधर गया सारा मामला? ये अपने घर के अंदर थे, मां, बेटा, 2 मासूम बच्चियां, ये 4 लोग शहीद हो गए। जवाब कौन देगा? किसने मारा इन्हें? क्यों मारा इन्हें? लोग अपने घरों के अंदर महफूज नहीं है, आप यहां से अंदाजा कर लें। हम चाहते हैं कि अमेरिकन अपने घरों में महफूज रहे, इसराइली अपने घरों में महफूज रहे, ईरानी अपने घरों में महफूज रहे, लेकिन पाकिस्तानियों को उनके घरों में महफूज कौन रखेगा? आपको पता है पाकिस्तान की हालत क्या होगी? ग्लोबल पीस इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई है, यह आलमी सतह पर छपने वाली रिपोर्ट है, आप जाके सारे इसको देख सकते हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के 6 पॉइंट्स मजीद गिर गए हैं, यानी पाकिस्तान में जो अमनो अमान की सूरत हाल है वो मजीद खराब हो गई। इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दहशतगर्दी के हवाले से बताया गया कि पाकिस्तान सफ़े अव्वल के उन ममालिक में शामिल है जो दहशतगर्दी से शदीद तरीन मुतासिर हैं। 2017 के बाद अब पाकिस्तान की बदतरीन सूरत हाल हो चुकी है।
ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 163 में से 152 नंबर पे आ गया है। 14 ऐसे ममालिक हैं जिनके सामने रेड डॉट लगाया गया है कि यह खतरा है इन ममालिक में, यहां अमनो अमान नहीं है। तो कौन आएगा तिजारत करने के लिए, कौन आएगा सरमायाकारी करने के लिए? वो जो 14 ममालिक डाले गए हैं ना, उनमें ज्यादातर ममालिक वो है जहां पे जंग चल रही है। यमन है, शाम है, रूस है, यूक्रेन है, सूडान है, अफगानिस्तान है, सोमालिया है, म्यांमार है। इराक की सूरत हाल पाकिस्तान से बेहतर बताई गई है इस इंडेक्स में। इंडिया तो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। तो दुनिया में आप अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान में आपने अमन का जनाजा निकाल दिया। रोजाना कहीं ना कहीं दहशतगर्दी का वाकया होता है, रोजाना कहीं ना कहीं ड्रोन चलता है। तो ये जो ड्रोन के खिलाफ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब का एक स्टांस था जो बड़ा क्लियर था, वो किधर गया? और उस पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? कोई एक एफआईआर भी आप बताएं कहीं पे दर्ज हुई हो ड्रोन हमले के खिलाफ? कुछ भी नहीं किया जा रहा। अगर आप गौर करें ना नाज़रीन, तो ये एक तो पीस इंडेक्स आ गया ना अभी, इससे पहले पासपोर्ट रैंकिंग भी आई थी पाकिस्तान की, उस पर भी आलमी रिपोर्टें थी। पाकिस्तान बदतरीन पासपोर्ट रैंकिंग के अंदर चला गया। फिर उसके अलावा जो है वो कर्जों का बोझ पाकिस्तान के ऊपर किस कदर बढ़ गया। यानी दुनिया में हम सहूलतकारियां कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, और पाकिस्तान के अंदर हमने इतनी बदअमनी फैलाई हुई है कि कश्मीर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक और नीचे आप चले जाएं कराची तक, कहीं पे भी मुकम्मल तौर पे अमनो अमान नहीं है। और पंजाब में सीसीडी ने एक अजीब हरबोंग मचाया हुआ है, वो बंदे मारते जा रहे हैं मावराए अदालत, इस बात से बेखबर कि यह तरीकाकार कभी भी अमन नहीं लेकर आता। यह तरीकाकार मजीद बदअमनी को पैदा करता है। आपको अदालतों को और प्रोसिक्यूशन के सिस्टम को और इन्वेस्टिगेशन के सारे टूल्स को मुतहर्रिक करना पड़ेगा, फिर आप अमनो अमान ला सकते हैं, जैसे पूरी दुनिया लेकर आई है। नाज़रीन, इस वक्त जो कश्मीर में सूरत हाल है वो सियासी जमातों की गले की हड्डी बनती जा रही है। अगर वहां पे इलेक्शन मुअख्खर नहीं होते तो मुसीबत पड़ जाएगी पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी को। और अब पीएमएलएन के लोग और पीपल्स पार्टी के लोग मुकरना शुरू हो गए। वो जो पीपल्स पार्टी का वजीर आजम है, उसने कोई सबूत नहीं देखा, कोई चीज नहीं देखी। वो अपने मुंह से कहता है, फैसल राठौर, कि मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो सबूत देखे ही नहीं। वो जिन्होंने पाबंदी लगवाई उन्होंने देखे होंगे। भैया आप वजीर आजम हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनसे ब्रीफिंग मांगते, आप ब्रिगेडियर को कहते ले आओ अपने सारे सबूत, और लाकर सामने लगाते, अपने साथ अपनी काबीना को बिठाते, बैठकर फिर आप लोग ये फैसला करते कि आया इस जमात के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। उन सबूतों को आप वेरीफाई करते, आप उनसे पूछ सकते थे, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों से, वो आपके साथ राब्ते में। लेकिन अर्दलियों वाला काम किया, जो उन्हें कह दिया गया इन्होंने नोटिफाई कर दिया। अब बिलावल जो है वो इससे पीछे हटना चाहता है। पीएमएलएन ने कहा जी हमसे तो मुशावरत ही नहीं हुई, ना हम कलदम करने में है, ना हम पर्चे काटने में है, ना हम ऑपरेशन करने में है। और बिलावल जो है उनका स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं, एक जुमला आपको बताऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। बिलावल ने कहा कि तमाम मामलात का हल जमहूरी, आईनी और पुरअमन जराए से निकाला जाए। अब इन्हें जमहूरियत भी याद आ रही है, आइन भी याद आ रहा है, पुरअमन भी याद आ रहा है। हालांकि इन्होंने ही, बिलावल की हुकूमत ने ही कलअदम करार दिया, बिलावल की हुकूमत ने ही सरों के ऊपर इनाम रखा, और बिलावल की हुकूमत ने ही ये सारे नोटिफिकेशन जारी किए, और बिलावल की हुकूमत ने ही क्रैकडाउन भी करवाया और सिक्योरिटी फोर्सेस को आजाद कश्मीर में बुलवाया भी। ये सारा बिलावल